Hello, learners. So, we are back with another chapter, and today we are going to discuss about human development in India. This is the third chapter of second book of Geography, class 12th, India, People and Economy. So, let's start. We have already learned about the concept of human development and we have discussed in the first book. Let us revise the concept of human development. What is human development? So when we talk about human development, ये मानव विकास की हम बात करते हैं, तो विकास किसका होना चाहिए? ये मानव का विकास है हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये मानव के लिए ही होना चाहिए and people should be at the center of all developmental process. हमें मानव को केंद्र में रखकर और उनके आसपास हमें विकास के मायने हमें ढूंढने होंगे. So how can we reach about human development? So human development, this concept was given by Dr. Mehboob ul Haq, a Pakistani economist, and according to him, human development is meant by enlarging people's choices. हम लोगों के चुनने की क्षमता को अगर हम बढ़ाते हैं और उनकी हम कैपेसिटीज अगर हम बढ़ाते हैं तो हम मानव का विकास सही मायने में कर रहे होते हैं. So how can we enlarge people's choices? In what all fields we have to enlarge people's choices? So according to Dr. Mehboob ul Haq, enlarging people's choices by increasing their opportunities for education, healthcare, income, and empowerment. So, अगर हम इन चारों चीजों का हम ख्याल रखते हैं, if we educate the people and if we take care of the health, health is very important for human development because a person who is unhealthy, who is suffering from disease, his we are not talking about his well-being. So only a healthy person can contribute and he will have more freedom to choose. If a person is sick, his freedom gets limited because of his sickness. He will not be able to do what he wants to do. उसकी जो choices हैं वो limit हो जाएंगी उसकी बीमारी की वजह से. वो अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता. तो even agar if he wants to celebrate, he will not be able to, his capacities will be undermined because of health. So health is also an important issue in human development. People should be healthy, people should be educated, and we know in society we will have access to resource. We have some minimum needs, we need to fulfill our minimum needs, and to fulfill this minimum needs we need some basic income. So income is also important for development of humans. It gives us access to resources, and resources are important for leading uh, life with dignity, a life without any deprivation. So, income is also an important aspect of human development. Because we see around us the poor people, their choices become limited because of poverty. वे अपने जो जो माँ बाप जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं होती है तो उनके पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड होते हैं. वो अपने बच्चों को जिस स्कूल में डालना चाहते हैं वहां नहीं डाल पाते. कई बार पॉवर्टी की वजह से दे आर नॉट एबल टू इवन सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. सो income, a basic source of income is important for human development because that helps in enlarging people's choices. And the last one is empowerment. Empowerment means the ability to make decision. अगर हम अपने
डिसीजंस अगर हम खुद लेते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, if we can take our own decisions, we are not influenced by others, then it is said that we are empowered. तो अगर हम इन चारों चीजों को ध्यान में रखकर, if we are able to enlarge people's choices, then in the true sense we are talking about human development. महबूब डॉक्टर महबूब उल हक के साथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने भी बहुत लंबे समय तक ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे काम किया है. प्रोफेसर Amartya Sen, he is very famous Nobel laureate from India and very famous economist. Though both of them have worked together for the development of the concept of human development, and this was given in 1990s. The concept came into focus in 1990s. So what should be the aim of human development? The primary aim of human development is welfare of the people. हमने पहले ही बताया कि हमें मानव को केंद्र में रखकर उसके आसपास हमें विकास बुनना है. So we have to think about, in all terms we have to think about welfare of the people through development. अगर ऐसा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं और लोगों के बारे में हम नहीं सोच रहे, लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोच रहे, उनकी आवश्यकताओं का हम ध्यान नहीं दे रहे, तो वो किसी भी मायने में वो ट्रू सेंस में ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा. ह्यूमन डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हम मानव को केंद्र में रखकर उसके आसपास हम विकास का ढांचा बुने, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उनकी बेसिक नीड्स की पूर्ति हो. जो बेसिक नीड्स है ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, तो ये जो बेसिक नीड्स हैं अगर इसकी पूर्ति हो रही है और उसमें उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, there is always an increment in the quality of life that people are leading. The standard of life is increasing. So in that will be in true sense that can be called as human development. So the aim of human development should always be welfare of the people, and it relates to development in economic field, in the social field, in the cultural field, and also in the political field. तो चौतरफा विकास होना चाहिए. आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक विकास. तो जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दिस इज रिलेटेड टू जीडीपी और पर कैपिटा इनकम. तो लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, उनको एक सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी देना टू gain the kind of work they want to do, and they are able to earn some respective money which should be able to fulfill their basic needs. तो वो economic development होगा. सोशल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन. एक समानता होनी चाहिए समाज में. देयर शुड बी अ सोशल हार्मनी एंड पीपल should respect each other's viewpoints. कोई एक दूसरे से बैर नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए. तब वो सामाजिक सामंजस्यता जब बनी रहेगी तब वो सोशल डेवलपमेंट होगा. कल्चरल डेवलपमेंट, there are different people living in India. We know that India is a country with cultural diversity. If people have the right to follow their culture, वो अपने traditions को बिना रोक टोक के अगर follow कर पा रहे हैं, so that is cultural freedom is there. So then we can talk about cultural development. We can also like exchange our ideas in terms of culture. We can learn the
better things from the other cultures and we should adapt it. So then the cultural development will take place. And the last one is about political development. So in this, there are different kind of political system that are followed in the world, and democracy is thought to be the best political system because it gives freedom to the people. So under imperialism, under colonization, people do not have much freedom. Their freedom is undermined. So democracy is the best kind of political system where people have the right to voice their opinion against the government if they do not feel that the policies of the government are for their welfare. People also have the right to choose their leaders. So, if we talk about political development, democracy is seen as the best form of government, and there should be freedom available for the people so that they can voice their opinion. Now, this concept of Eurocentric view of development, इसको हम वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं. सो 1990 के पहले, 1990 के पहले जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, जब हम डेवलपमेंट की बात करते थे तो वो मोर और लेस दिस वाज कंसंट्रेटेड अराउंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते थे, हम मानव विकास की बात नहीं करते थे, क्योंकि मानव विकास का जो उद्भव हुआ, इस टर्म को देने वाले डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में इस पूरे कॉन्सेप्ट का विकास किया है. उसके पहले जब भी हम किसी भी देश के, किसी नेशन के डेवलपमेंट की बात करते थे तो डेवलपमेंट का अर्थ हम डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेते थे. और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, सो इट इज रिलेटेड टू मॉडर्नाइजेशन, industrialization, leisure, comfort, affluence, computerization, machine use of machines, that is mechanization, efficient transport and communication network build up करना, और educational system, बड़े बड़े educational system build up करना, ये डेवलपमेंट के मायने लिए जाते थे और लिए जाते रहे हैं 1990 के दशक के पहले. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्नाइजेशन, हम ये भी कहते हैं कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम. डेवलपमेंट का अर्थ है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार हो. और इस के साथ हम रिलेट करते हैं इसको कि डेवलपमेंट जो है, हम औद्योगिकरण से उसे रिलेट करते हैं, हम उसे कंप्यूटराइजेशन से रिलेट करते हैं, मैकेनाइजेशन से रिलेट करते हैं. इसका मतलब कि अगर ज्यादा से ज्यादा हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा लोग हमारे इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, और हमने बेटर मींस ऑफ, एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने डेवलप किया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये एरिया डेवलप्ड है. हम डेवलप्ड नेशंस की भी बात करते हैं, तो जब भी हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं, वहां हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं आंकते हैं. और जब हम डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन, जो हम कंट्रीज को हम क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ही बात करते हैं. और आज जो भी कंट्रीज डेवलप्ड कहे जाते हैं, वहां पे ये सारे फैसिलिटीज हैं. तो क्या सही मायने में हम डेवलपमेंट को इन चीजों से रिलेट कर सकते हैं? ये हमें सोचना होगा, क्योंकि ये यूरोसेंट्रिक व्यू है या मॉडर्न व्यू है डेवलपमेंट का. ये आधुनिकीकरण जब हम करते हैं, तो आधुनिकीकरण के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम भौतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज द फिजिकल थिंग्स फॉर डेवलपमेंट. But then we'll have to question here कि क्या फिजिकल चीजों से रिलेट करके हम मानव का विकास कर पाएंगे? मानव के विकास के लिए अगर हम भौतिक वस्तुओं को हम इकट्ठा कर लेते हैं या भौतिक सुविधाएं हम उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या ये सही मायने में डेवलपमेंट है?
या नहीं है। इसको हम थोड़ा विस्तार से इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो औद्योगिकरण जब भी होता है, नो डाउट उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है, पीपल आर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज एंड देयर इनकम लेवल एनहांसेस। ठीक है, तो एक तरफ तो लोगों को जॉब मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि उनका वेलफेयर हो रहा है, उनकी इनकम एनहांस हो रही है, दे हैव एक्सेस टू रिसोर्स। लेकिन कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए जो जमीन हम एक्वायर करते हैं, तो वो जमीन हो सकता है एग्रीकल्चरल लैंड हो, और हमें वहां से जो लोग वहां पे पहले से बसे हुए हैं उन्हें हमें डिस्प्लेस करना पड़ता है। और जब हम उन्हें डिस्प्लेस करते हैं तो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कंपेंसेशन और द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोवाइड्स कंपेंसेशन टू दोज पीपल। तो हम कंपेंसेशन उन्हें देते हैं, लेकिन क्या उनकी स्वतंत्रता खत्म नहीं हो रही है? हमें यहाँ प्रश्न पूछने होंगे। जो जिन लोगों को हम विस्थापित कर रहे हैं, क्या हम उनकी स्वतंत्रता उनकी छीन नहीं रहे हैं? क्या वो अपनी मर्जी से विस्थापित हो रहे हैं, या हम उन्हें सिर्फ कंपेंसेशन अमाउंट अगर हम दे दें तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है? उनकी जीविकोपार्जन का साधन हम छीन ले रहे हैं और सिर्फ हम उन्हें कंपेंसेशन देकर और कहीं और बसा देते हैं। उनके जो आसपास जो भी व्यक्ति एक गांव में बसा होता है, उसका पूरा एक सोशल लिंक वहां पे डेवलप होता है। और जब भी कोई विस्थापित हो के किसी को दूसरी जगह जब सेटल करना होता है, तो उसके जो मानव रिलेशंस हैं वो तार तार हो जाते हैं, और कई बार उसे अकेलापन महसूस होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, औद्योगिकरण के थ्रू कुछ लोगों का भला कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो हाशिए पे भी चले जा रहे हैं। तो इसमें सबका भला नहीं हो रहा है। तो जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं हो, हम मानव विकास की बात हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जब मॉडर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट है, जो यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट है, जो मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण की ओर इशारा करता है, जो फन मेकिंग लेजर टाइम के इशारा करता है कि हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम हो, एंटरटेनमेंट के साधन उपलब्ध हो, जब हम कंफर्ट की ओर हम जाते हैं, और जब हम ज्यादा से ज्यादा अर्निंग को हम या एफ्लुएंस जो है, ज्यादा अर्निंग को कहते हैं। तो जब हर चीज को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ज्यादा रिसोर्सेस को अंधाधुंध दोहन करते हैं, तो उसके साथ समस्याएं भी बढ़ती हैं। इस हर स्तर पे हर एक आधुनिकरण के जो मायने हैं, हर एक से कई समस्याएं पैदा होंगी। तो जब हम डेवलपमेंट के साथ साथ हम प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या ये सही मायने में डेवलपमेंट है? ये प्रश्न हमें पूछने होंगे। सो दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि ये यूरोपियन व्यू ऑफ डेवलपमेंट है। और हम कई बार यूरोपीय देशों को हम फॉलो करते हैं। हमें अच्छा लगता है मॉडर्न होना, हम सभी मॉडर्न कहलाना चाहते हैं, और हम उनका जो है उनको देखकर हम वैसे ही बनना चाहते हैं। तो और हम अपने आप को डेवलप्ड कहते हैं। फिर हम तो यहाँ पे हमें बार बार इस प्रश्न को दोहराना होगा और सोचना होगा, क्या ये सही मायने में ये विकास का चित्र प्रस्तुत करता है, जब एक तरफ विकास के लिए हमें दूसरी तरफ किसी न किसी का नुकसान हम कर रहे हैं, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम दूसरा अगर हम एग्जांपल ले कंप्यूटराइजेशन में, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। जब हम ज्यादा मशीन्स यूज करते हैं, और इंडिया जैसे देशों के लिए मैकेनाइजेशन की स्थिति जो है बेरोजगारी पैदा करती है। हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमें मशीन वर्क को अडेप्ट करने से काम नहीं चलेगा। और हमें हैंडलूम, जैसे गांधी जी ने कहा था कि हमें हाथ से काम लेना होगा, जिससे कि हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाए। तो we'll have to always relate this Eurocentric view of development uh, with
the local conditions, and we'll have to see कि अगर हम इसमें से कोई भी डेवलपमेंट के मायने उठाते हैं तो उससे क्या सबका भला हो रहा है या नहीं हो रहा है. So this question always remains in the mind. उसी से रिलेट करता हुआ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो बुक में दिया हुआ है. डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड पीपल, नॉट पीपल अराउंड डेवलपमेंट. तो इन दो जो स्टेटमेंट्स हैं इसको हम समझने का प्रयास करेंगे. डेवलपमेंट मस्ट बी वोवन अराउंड पीपल, क्या मतलब है कि विकास लोगों के लिए होना चाहिए, न कि लोगों को विकास के लिए हम इस्तेमाल करें. तो जो पिछले स्लाइड में जितने भी पॉइंट्स हमने देखे थे उसमें हम लोगों को विकास के लिए यूज करते हैं, न कि लोगों का विकास करते हैं. जब हम लोगों का विकास करेंगे तो समस्याएं नहीं बढ़ेंगी, समस्याओं का समाधान होगा. लेकिन जब हम लोगों का इस्तेमाल विकास के लिए करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो हम इंडस्ट्रीज हम बिल्ड कर दिए, हमने मशीन्स लगा दी, तो जब तक वहां पे लोग काम नहीं करेंगे वो इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं होगी. सो फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन वी आर यूजिंग द पीपल. So here we are using people for development. In Eurocentric view of development, we are using the people for development. We are not building development around the people. So जब तक सबका विकास नहीं होगा, सभी लोगों की भलाई नहीं होगी, सभी लोगों के वेलफेयर को ध्यान में रखकर हम काम नहीं करेंगे, हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर सकते. So it is we have to keep the people in the center of all development work, and we have to see that development in one hand is not harming or is not causing underdevelopment on the other hand. सो डेवलपमेंट की वजह से अंडर डेवलपमेंट पैदा नहीं होना चाहिए और सबका विकास होना चाहिए. जब तक सबका विकास नहीं होगा हम मानव विकास की बात नहीं कर सकते. कई बार ऐसा भी हमें देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो रिच लोग हैं, द पीपल हु आर रिच, they are becoming more and more rich, but the people who are poor, uh, they are deprived of their basic livelihood situations, and they are becoming poorer and poorer. They are becoming marginalized. So that is not the right picture of development. So here we have to see that the development must be woven around people. People should be at the center of all development programs. Okay, so the second statement, that people are around development, yeah, people are used for development, it relates to the second half of the statement. It relates to the Western view of development, or the Eurocentric view of development, which uses the people for development. Okay, so that you have to make clear. Now here you see two pictures, and this picture especially is of Mumbai urban area. And here you see in the first picture, you see the multi-storied buildings and the urban sprawl. There is a metro transport system and it's all neat and clean. It looks very good. But on the same side, in यही मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स के पिछवाड़े में अगर हम देखेंगे, उनके बैक साइड में देखेंगे, सो देयर इज द ग्रोथ ऑफ स्लम्स. तो यहाँ पे तो बहुत सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं और इन लोगों के लिए प्रॉपर घर नहीं है, इतने पास पास में घर हैं, घरों के बीच में प्रॉपर गैप नहीं है, बहुत ज्यादा गंदगी है, और छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और इनको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है. आप ये देखिए, प्रॉपर छज्जे भी नहीं है, ये प्लास्टिक से या किसी चीजों से अपने छत बनाए हुए हैं. तो कई बार ऐसे बारिश के समय में इन्हें प्रॉब्लम होती है, घर के अंदर पानी आ जाता है, सीवेज वाटर आ जाता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम अंडर व्हिच दे आर फेस टू लिव अंडर poverty kind of conditions.
So in any urban center of India, you can see that development and underdevelopment coexist. Agar development, if the development is leading to underdevelopment, it is not development actually. डेवलपमेंट, अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास होना चाहिए, और उसके साथ अंडर डेवलपमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, और सबका विकास होना चाहिए. इफ वी हैव द अर्बन स्पर्ल्स, वी शुड आल्सो हैव basic living facilities for the slum dwellers as well. We should also provide basic facilities to the slum dwellers, and they should have a respectful living conditions. Then only we can say that development has taken place. If development of these sprawls is leading to the spread of slums on the other part of the city, then it is not development in the true sense. यहाँ पे फिर विरोधाभास है डेवलपमेंट में, हमें देखने को मिलता है हर शहरों में. हम शहरों को विकास के मायने से लेते हैं. शहरों को हम कहते हैं कि दे आर मॉडर्न, दे आर डेवलप्ड, एंड हम उनको ज्यादा विकसित मानते हैं, और गांव को हम अविकसित मानते हैं. लेकिन शहरों में ही हमें एक विरोधाभास की स्थिति हमें देखने को मिलती है. हमें पैराडॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिलता है कि एक पिक्चर तो डेवलपमेंट का है, लेकिन वहीं दूसरा पिक्चर जो है अंडर डेवलपमेंट का है. यहाँ पे आप देखिए, this is uncovered drain that is passing by from at the back of the houses, और इससे कितनी ज्यादा समस्या हो सकती है ये आप सबको पता है. This can be the spreading side of many diseases, pests and insects. यहाँ पे देखिए garbage, there is no proper disposal of garbage. Garbage is strewn all around. These houses are very tattered, they are not in good shape, और इसमें लोग रहने को मजबूर हैं इन कंडीशंस में. They do not have proper drinking water facility, proper electricity supply. So urban slums, they just show the picture of पैराडॉक्सेस इन डेवलप विकास में जो विरोधाभास की स्थिति है उसे अर्बन स्लम्स कहते हैं. क्या ये आपको डेवलपमेंट का पिक्चर यहाँ दिख रहा है? अगर आप ये फर्स्ट पिक्चर को देखें और इससे कंपेयर करें इन पिक्चर्स को, सो दिस इज नॉट डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस. So when we talk about India, in the case of India, development is a mixed bag of opportunities as well as neglect and deprivations. Opportunities for whom? Opportunities for a few people. Those who are literate, those who are living in the urban area, those who are employed. And neglect and deprivation for whom? For the poorest, poverty-stricken people, for the marginalized lot, जिनको हमने किसी भी कारण से विस्थापित कर दिया है या उन्हें हाशिए पे रहने को मजबूर किया है, कि वो शहर में रहकर भी उस शहर के हिस्से जैसा नहीं दिखते हैं. वो एरिया अलग दिखाई देता है, वो शहर का एरिया है लेकिन वो डेवलप्ड नहीं है. हम शहर को मानते हैं कि वो दे आर डेवलप्ड, दे आर all the cities, the metropolitan cities, they are related to the development, but at the same time there is growth of slum in most of the cities, which is provides a picture of neglect, because there the municipal corporation is also not taking place of the facilities that they should be provided. The basic facilities are not available to the slum dwellers, so that is a case of neglect and deprivation, because these people are deprived of the basic necessities. ठीक है, वो अभाव में जीने के लिए मजबूर हैं और उनका कोई भी ध्यान नहीं रखता. उस शहर के हो के भी उनको शहर का हिस्सा लोग नहीं मानते हैं. So let's see the impact of development on marginalized community. अब ये marginalized communities कौन से हैं?
मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ऐसे हैं जिनके साथ ज्यादातर सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, या जो किसी भी रीजन से विस्थापित हुए हैं, जिन अगर मान लीजिए रोड्स बनाने के लिए या डेवलपमेंट के लिए जिनकी जमीनें हमने गवर्नमेंट ने ले ली और उनको कंपनसेशन देकर कहीं शहर से दूर नई जगह पर सस्ती जमीन उपलब्ध करा के वहां पे बसने के लिए दे दिया, तो उनके खेत जब ले लिए गए, अगर वो खेती करते होते हैं तो उनके खेत जब ले लिए गए तो उनके पास जीविका के कोई साधन नहीं है, और भले ही कंपनसेशन हम दे दें लेकिन उनके पास जो स्किल थी, जिस स्किल को वो फॉलो करके अपनी जीविका चला रहे थे, अपने लाइवलीहुड अर्न कर रहे थे, तो उस स्किल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो उन्हें एग्रीकल्चरल लेबरर बनना पड़ता है, दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता है, या तो कहीं और माइग्रेट करके नए जॉब ढूंढने पड़ते हैं. सो we create problems for them. So the marginalized lots are either the people of the low caste, scheduled tribe के लोग हों, या जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हों, या पुअर फार्मर्स हों, या स्लम ड्वेलर्स हों, इन सभी को हम मार्जिनलाइज्ड कह सकते हैं, क्योंकि ये हाशिए पर रहने को मजबूर हैं. उन्हें हम विकसित सोसाइटी का हिस्सा नहीं मानते और हम उनकी ओर ध्यान भी नहीं देते. सो these people जो marginalized lot हैं, इनमें भी जो महिलाओं का जो स्टेटस है that is still worse. जो marginalized कम्युनिटी है वो समाज में समान अधिकार उनको प्राप्त नहीं है, एक तो ये प्रॉब्लम है. और उन marginalized कम्युनिटीज में भी जो women folks हैं उनकी स्थिति और भी खराब है. So let us talk about what are the problems of these marginalized communities. Development की वजह से इन marginalized community इनको उनकी basic amenities, basic facilities उपलब्ध नहीं होता है. इनके पास डेवलपमेंट के समान अवसर उपलब्ध नहीं है. There is unequal development opportunities available for these marginalized communities. They are forced to live amongst the deteriorating human conditions. Polluted land में जहाँ पे proper garbage disposal नहीं हो रहा है, नाले ऐसे खुले में बह रहे हैं, तो ऐसे पॉल्यूटेड कंडीशंस में उन्हें रहने को मजबूर होना पड़ता है. एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, ये सभी तरह के पॉल्यूशन को झेलने को ये मजबूर होते हैं. कई बार जो गार्बेज डंपिंग ग्राउंड होता है उसके आसपास अगर इनके घर हैं तो वो फाउल पंजेंट स्मेल उनको वो बार बार उसका सामना उन्हें करना पड़ता है. एंड दिस रिजल्ट्स इन ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स. उनके लिए ये मुश्किल भरी स्थिति होती है जिनमें वो समय बिताने के लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर है. उनके पास दूसरे कोई साधन नहीं है, दूसरे कोई उपाय नहीं है और कोई ध्यान भी देने वाला नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, क्योंकि जिस नेचुरल डिजास्टर से भी यही वो लोग हैं जो ज्यादा सफर करते हैं, यही लोग हैं जो ज्यादा अगर पॉल्यूशन है अर्बन एरियाज में तो इन पे ज्यादा असर होता है, क्योंकि इनके घर जो हैं वो पॉल्यूटेड लैंड के आसपास होते हैं, इनके पक्के घर नहीं बने हुए हैं. बारिश में भी जब बहुत ज्यादा बारिश होती है इनके घरों में पानी आ जाता है, कई बार सीवेज वाटर आ जाता है. सो दे हैव टू सफर अ लॉट, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर कैपेबिलिटीज आर डिक्लाइनिंग. उनकी क्षमताओं का हनन हो रहा है, और 3 प्रकार से उनकी क्षमताओं का हनन होता है. फर्स्ट इज social capability. The social capability is declining because due to developmental activities, many a times some of the people are displaced. अगर किसी डैम को बनाना है, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने हैं, या ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंशन करना है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक्सपेंशन करना है, इन सभी स्थितियों में there are many people
who have to give up their land to the government. Government acquires their land, and they have to be displaced from the land which was owned by them for several generations. कई generation से वो उस गांव में रह रहे थे, उस जमीन पे उनका अधिकार था, और हम वो जमीन उनसे जब ले लेते हैं तो उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनकी सोशल कैपेबिलिटीज डिक्लाइन कर जाती है। क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं, कई जनरेशन से जब आप किसी गांव में रहते हैं, वो ह्यूमन रिलेशंस फॉर्म करते हैं, वहां पे उनका पूरा सिस्टम बिल्टअप होता है। अगर उनकी कोई समस्या है तो गांव में एक जो है अभी भी लोग मिलकर रहते हैं। और अगर मान लीजिए किसी के घर में किसी भी कारण से अगर भोजन उपलब्ध नहीं हो, तो आसपास के लोग एक फैमिली के सॉर्ट में उनसे वो उनको भूखे नहीं रहना पड़ता, एंड दे शेयर थिंग्स। सो जो इस तरह की बात है वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। जहां वो विस्थापित होके जा रहे हैं, वहां पे उन्हें फिर से ह्यूमन रिलेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे। और जिस जगह पे वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कई पुश्तों से रह रहे हैं, उस जगह से जब वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। जो सोशल रिलेशनशिप है वो टूट जाता है, और उन्हें नई जगह पे फिर से ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में they will definitely take time, and till then there will be a lot of problems that they will have to face. दूसरा जो है environmental capabilities, इनकी environmental capabilities भी decline होती है due to pollution। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो marginalized people हैं, they build their houses in disaster, some many a times in disaster prone areas, low lying areas में वो घर बनाते हैं जहाँ सस्ती जमीनें उपलब्ध हैं। कई बार फ्लड वाटर वहां पे आ सकता है। अगर कोस्टल लैंड है तो वहां पे टाइडल वेव सुनामी से उन डैमेज हो सकता है। या फिर अगर वो सड़क के किनारे अपने झोपड़े बनाकर रह रहे हैं, तो कई बार जो एयर पोल्यूशन है या नॉइज पोल्यूशन है, उसका सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अगर वो नाले के आसपास उनकी जमीन है, जैसा हमने पिछले पिक्चर में देखा, तो वो वाटर पोल्यूशन का ब्रंट उन्हें झेलना पड़ता है। तो इन सब की वजह से उनकी कैपेबिलिटीज डिक्लाइन होती है, और कई बार उन्हें उनमें ये कई सारी डिसीजेस का स्प्रेड हो सकता है। जैसा कि हमने एक वो देखा था नाले वाला, उसमें many disease causing bacteria and can grow, and that may result in the health problems in these people। तो उनकी environmental capabilities भी decline होती है due to pollution, and again as a consequence their personal capabilities is also decline due to diseases and accident। मैंने आपको बताया ये पॉल्यूशन की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, कई और नॉइज पॉल्यूशन, इन सभी चीजों सारे पॉल्यूशन की वजह से दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिसीजेस। और जब उनके घर ठीक से नहीं बने हुए, वहां पे कई तरह के एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। इफ द फायर स्प्रेड बहुत सारे घरों में, क्योंकि इनके जो छत हैं वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं विच इजीली कैचेस फायर। तो स्लम्स में अगर कभी किसी भी इंसिडेंस अगर फायर का हो, तो बहुत सारे घरों में वो आग जल्दी से पहुंच सकती है और उसे काबू में लेना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा कई बार जिनके पास घर नहीं होता, दे आर फोर्स्ड टू लिव ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पे वो फुटपाथ को ही अपना घर बना लेते हैं, सड़कों पे सोते हैं, और ऐसे में एक्सीडेंट्स की संभावना हो, होती है। इवन द पीपल दोज हु बिल्ड देयर हाउसेस क्लोज टू द मेन रोड्स, वहां पे उनके छोटे छोटे बच्चे कई बार सड़कों पे खेलते हुए निकल जाते हैं, तो एक्सीडेंट की संभावना हमेशा इनके साथ ज्यादा बनी रहती है, जिसकी वजह से इनकी पर्सनल कैपेबिलिटीज भी रिड्यूस हो जाती है। सो आप देख रहे हैं कि दीज पीपल
are already sufferers, and their suffering is increasing due to development, the so called development, जिसे हम यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं. सो ये ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड है एंड इनकी कैपेबिलिटीज कम होती चली जा रही हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. So the present development, जिसे हम यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, this development is unable to address the issues of social injustice. सामाजिक समानता नहीं है, किसी का ज्यादा भला हो रहा है और जो हाशिए पर हैं वो और ज्यादा मार्जिनलाइज हो रहे हैं, उनकी कैपेबिलिटीज भी, उनकी क्षमताएं भी कम होती जा रही हैं. So they are becoming poorer and poorer. The rich is becoming rich. इससे social gap जो है बढ़ रहा है समाज में. rich और poor के बीच की जो खाई है ये बढ़ती चली जा रही है. Regional imbalances. रीजनल इम्बैलेंसेस कह सकते हैं. शहरों का ज्यादा विकास हो रहा है, गांव में विकास की पहुंच नहीं है, गांव तक विकास नहीं पहुंच पा रहा है और ज्यादातर हमारे शहर ही विकसित कहे जाते हैं. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये हर तरह से लैंड रिसोर्स डिग्रेड हो रहा है. व्हेन द fertility of the soil is lost and the soil becomes unproductive. So that is one point, because of disposal of garbage, because of other reasons also, improper use of chemical fertilizer, pesticide. तो इन सब की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, सॉइल डिग्रेड हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, air pollution, noise pollution, all these come under environmental degradation. So the quality of the environment is becoming poor and poor, is reducing. So due to development, if these problems are created, we can't call it development. हम इसे development बिल्कुल कहना पसंद नहीं करेंगे अगर विकास की वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. विकास की वजह से समस्याओं को कम होना चाहिए, न कि समस्याओं का उत्पन्न होना चाहिए. तो अगर विकास की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से these problems are being created, it is not the right way of development. So when development becomes the cause of social injustice, सामाजिक जो भेदभाव है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. कई बार even the police, they do not write the complaints of these poor people, जो उनको ब्राइब कर पाते हैं या जिनके पास जो धनाढ्य लोग हैं उनकी बातें सभी लोग मानते हैं और इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता है. So that is also a case of social injustice. Deterioration in quality of life, इनकी the standard of living है that is not so good, and the quality of life deteriorates. Ecological crisis, that is because of environmental degradation and social unrest. So they have a feeling of neglect. उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो इस समाज में, हम जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन है, समाज मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है. इनके मन में एक दुर्भावना आ जाती है जब उनको सामाजिक न्याय नहीं मिलता है. तो ये सोशल अनरेस्ट जो है, दिस मे बी द कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स. इसकी वजह से कई समस्याएं उभर के आ सकती है, जैसे नक्सलिज्म है. This is especially because of the social unrest. अगर लोगों के बीच में कोई दुर्भावना है, अगर उनके मन में ये भावना घर कर गई कि हमारे साथ कभी भी न्याय नहीं हुआ, हमने हमारे अधिकारों को
हम हमारे अधिकार हमें प्राप्त अगर नहीं हुए तो उनके मन में एक दुर्भावना होती है और वो समाज से किसी न किसी रूप में वो एक बदला लेना चाहते हैं और they have not a good feeling in the society, so that causes social unrest. They may get engaged in anti-social activities. So in 1993, the UNDP report, it said on human development, according to this report, progressive democratization and increasing empowerment of people are seen as minimum conditions for human development. So 1993 में UNDP की रिपोर्ट में इन दो चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया. प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन मतलब लोगों में डेमोक्रेसी का अधिकार हो, उन्हें अपनी बात कहने का राइट हो. They should have the freedom of speech and expression, and it should be progressive. Means it democracy is the form of government that is followed, and it should try to remove the problems of the people, and more people should be included in development. So if we think about the welfare of the people in the democratic government, so that will be progressive government. प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट का मतलब है जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत पहले गवर्नमेंट ने नारा दिया था गरीबी हटाओ. गरीबी हटाओ का नारा दिया था. कई साल हो गए, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लेवल अपनी जीविका जीने को मजबूर है. तो ये पॉलिटिकल एजेंडा में था कि हम पॉवर्टी को रिमूव करेंगे, बट उसके लिए सही प्रयास नहीं हुए. सो स्टिल जब भी हम जो स्टेटस को है उसमें हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जब भी हम क्वालिटी में इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात तो हम कर ही नहीं सकते. देयर हैज टू बी अ चेंज इन क्वालिटी. Unless and until the qualitative improvement is there in the life of the people, unless and until these people have all the basic necessities of life, unless and until they have uh, the reach to education, health, drinking water facilities, access to resource, and living a life of dignity, so we cannot think about their development. ये बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होना चाहिए. दे शुड हैव दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, and their quality should increase day by day. The second is increasing empowerment of people. So people should have the decision making power. They should have the freedom to take the decisions. They should not be suppressed, or they should not be influenced by others. उनका दमनकारी नीतियां जो है उन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हम लोगों को एम्पावर कर पाएंगे. हम इंडिया में जो प्रॉब्लम है, ये हम कास्ट सिस्टम जो है, दिस इज a major problem which reduces the empowerment of people, and this takes away their freedom. So these two are regarded as the minimum conditions for ह्यूमन डेवलपमेंट. हम मानव विकास की बात तभी करेंगे जब सभी को अपनी डिसीजंस खुद लेने का अधिकार हो, एंड उनका जो स्टेटस को है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या बेसिक नीड्स है, उसकी पूर्ति हो, और उनके कंडीशंस में साल दर साल इम्प्रूवमेंट होता जाए, तभी हम कहेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है. ठीक है. सो थैंक यू. That's all in this video, and shortly we'll be uploading the other videos, other two videos for this chapter. Till then, stay tuned.